ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, 5th चैप्टर कर रहे हैं, श्लोक 6 है। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगता दुःखमाप्तुं योगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read, Prabhuji. हाँ, पढ़िए। Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. Hare Krishna. Should I read purport of this, Prabhuji? Yes, Madhavi, please. There are two classes of sannyasis or persons in the renounced order of life. The Mayavadi sannyasis are engaged in the study of Sankhya philosophy, whereas the Vaishnava sannyasis are engaged in the study of Bhagavatam philosophy, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutras. The Mayavadi sannyasis also study the Vedanta Sutras, but use their own commentary called Sariraka Bhashya, written by Shankaracharya. The students of the Bhagavad school are engaged in the devotional service of the Lord. According to Panakratriki regulations, and therefore the Vaishnava sannyasis have multiple engagement in the transcendental service of the Lord. The Vaishnava sannyasis have nothing to do with material activities, and yet they perform various activities in their devotional service to the Lord. But the Mayavadi sannyasis engaged in the studies of the Sankhya and Vedanta and speculation cannot relish the transcendental service of the Lord. Because their studies become very tedious, they sometimes become tired of Brahman speculation, and thus they take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. Consequently, their study of the Srimad Bhagavatam becomes troublesome. Dry speculations and impersonal interpretations by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance into the kingdom of God. The Mayavadi sannyasis sometimes fall down from the path of self realization and again enter into material activities of a philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements. And therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna consciousness activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they do come to Krishna consciousness after many births. Hare Krishna. All right, हरे कृष्णा, ग्रेट। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? अर्जुन ने इस चैप्टर के शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था। कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन था अर्जुन का? कोई अपने भाषा में बता दे। हाँ, Prabhuji, he was confused about his what to do, whether to do work in devotional or do devotional service. So he was confused about that. So he was confused about two things. What were the two things? बोला work in devotion और devotional service, वो तो एक ही बात होगी ना? वो तो एक ही बात होगी हाँ प्रभुजी. He was like renouncing from the work. हाँ, renouncing के अपना काम त्याग करके करूं या फिर भक्ति भावना से काम करूं.
तो यहाँ पे कृष्णा एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे हैं 5.6 क्या है कि सिर्फ त्याग करने से, रिनाउंसिंग एक्टिविटीज, और फिर भी अगर आप भक्ति में ना लगो, नॉट एंगेजिंग डिवोशनल सर्विस और द लॉर्ड कैन नॉट मेक वन हैप्पी, खुश नहीं करेगा। और बल्कि अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है डिवोशनल सर्विस में, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके के सन्यासियों के बारे में बताया गया है कि नहीं? कौन कौन से दो तरीके के सन्यासी, कोई बता सकता है? एक हो गए मायावादी सन्यासी, यहाँ लिखा है ना मायावादी सन्यासी, दिख रहा है? और वैष्णव वैष्णव सन्यासी। यस। तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं किसकी? सांख्य की, सांख्य फिलॉसफी की स्टडी करेंगे। और जो वैष्णव सन्यासी हैं वो भागवतम फिलॉसफी की स्टडी करेंगे। जो मायावादी सन्यासी हैं वो वेदांत सूत्र की स्टडी करते हैं, उस तरीके के बुक से जो शंकराचार्य जी ने लिखी है, शरीर का भाष्य जैसे हो गई। और जो वैष्णव सन्यासी हैं वो क्या करते हैं? वो भागवत की स्टडी करते हैं, भागवतम की, भगवत गीता, और किस तरीके से उसको समझते हैं? पंचरात्र की रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो सोचते हैं कि एक शक्ति है, पावर है, निराकार है, वो सब कुछ चला रही है, लाइट है, और उस लाइट में मर्ज हो जाना है हमने और खुद भगवान बन जाना है। और वैष्णव सन्यासी जो हैं वो समझते हैं कि हाँ, ये जो लाइट की बात कर रहे हैं, निराकार शक्ति की बात कर रही है, भगवान की शक्ति तो है, भगवान के अंदर से ही आती है, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो भगवान, जो सोर्स है इसके वो भगवान है। और जो भगवान है उनके साथ हम डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बैठा सकते हैं। खुद भगवान नहीं बनते, खुद जीवा कभी भगवान नहीं बन सकता, मगर भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और वो भगवान बनने से भी ज्यादा ऊपर है। क्यों ऊपर है वो? क्योंकि भगवान से ज्यादा आनंद हमें मिलता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए भगवान भी अपना भक्त बनना चाहते हैं, तभी वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, है कि नहीं? भगवान भी फॉर्म लेते हैं बलराम जी की, जिसमें वो सेवा करते हैं, या जब लॉर्ड रामचंद्र आते हैं तो लक्ष्मण की फॉर्म लेके सेवा करते हैं। तो ऐसे सेवा की भावना जो है वो उससे ज्यादा रिलिशिंग और प्लीजिंग कोई और भावना नहीं होती। तो इसलिए जो मायावादी सन्यासी हैं वो काफी तपस्या करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको खुशी और आनंद मिल नहीं पाता जो कि वैष्णव सन्यासी इसको मिलता है। ठीक है ना? ये सब यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया दोनों में। तो जो वैष्णव सन्यासी हैं वो क्या करते हैं? जो मायावादी सन्यासी हैं वो हर चीज को त्याग देते हैं, वो मौन व्रत रखेंगे, वो सब कुछ त्याग देंगे। और वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं? वो जो भी चीज होती है, जो भी फैसिलिटी होती है, जो रिसोर्सेज होती हैं, जो एनर्जी होती है उनके अंदर, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, त्यागते नहीं है वो। आप उनको दोगे वैष्णव सन्यासी को अगर कोई खाने पीने के पदार्थ, तो उनको भगवान के उसमें ऑफर करेंगे। अगर आप उनको दोगे कोई पैसे, तो वो भगवान के उसमें लगाएंगे। तो ये वैष्णव उसमें फिलोसफी। अगर आप उनको कहोगे म्यूजिक, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको भगवान की सेवा में यूज करेंगे, मृदंग, करताल। और मायावादी सन्यासी जो है वो फोकस करते हैं कि जगत से दूर जाने में, कि कैसे मटीरियलिस्ट चीजों से दूर जाए। और वैष्णव सन्यासी फोकस करते हैं कैसे भगवान के पास जाया जाए, वो भगवान के पास जाने में फोकस करते हैं। और मायावादी सन्यासी मटीरियल चीजों से दूर जाने में फोकस करते हैं। जो वैष्णव सन्यासी हैं
वो भगवान के पास बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजों से दूर होते जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण सूर्य समा माया हया अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया रा अधिकार। के कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, माया जो है वो अंधकार है, और जहाँ सूर्य होगा वहां अंधकार हो नहीं सकता। जैसे अगर आप देखोगे कि सुबह जब सूर्य उदय हो रहा है उससे पहले ही आप देखोगे थोड़ी सी रोशनी आने लग जाती है। अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन रोशनी आने लगी और अंधकार चला गया। तो उसी तरह से जब कृष्णा हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण हो जाता है हमारे हृदय का, तो फिर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी चली आती हैं। जितनी भी चीजें हैं जो खराब है हमारे हृदय में, वो सारी की सारी चली आती है। तो हमें फोकस किस पे करना है? कृष्णा को, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने हृदय में कृष्णा आए। इसलिए हमारा इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे को कॉन्शियस रखे कृष्णा। समझ में आ रहा है सबको अभी तक? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो क्या करते हैं? वो सांख्य की स्टडी तो करते ही हैं, वेदांता की, लेकिन साथ में स्पेक्यूलेशन भी करते हो समझने के लिए उसको, और स्पेक्यूलेशन की वजह से वो ठीक से समझ नहीं पाते एक्चुअली, और उनको बहुत कठिन तपस्या, प्रयास, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और उसके बाद भी उसको कई जन्म लग जाते हैं उनको, तब वो कहीं हायर लेवल में इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के चक्कर में से बाहर निकलने के उस पे आते हैं लेवल पे। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी हैं वो भगवान की भक्ति में लगे, तो वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, भगवान का शरण लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम कर सकते हैं, अपनी तपस्या से भगवान को जीत सकते हैं, ऐसे नहीं। वो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान को अपने, जैसा होता है ना, अर्जुन ने अपने रथ का जो रस्सी थी वो भगवान को दे दी कि जहां पे भी आपको मुझे ले जाना है, जो भी करवाना है। उसी तरह से हम भगवान का शरण लेते हैं और भगवान को देते हैं अपनी जिंदगी की रस्सी, कि भगवान जैसे आप चाहते हो वैसे हमें चलाओ। जैसे एक पपेट होता है उसको भी रस्सी से चलाते हैं ना, तो प्रभुपाद बोलते थे, मेक मी डांस द वे यू वांट मी टू डांस, आई एम अ पपेट इन योर हैंड्स। मैं आपके हाथ में पपेट की तरह हूँ। तो ये व्यक्ति का कॉन्शियसनेस है। ओके, Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have guarantee of ultimate entrance into the kingdom of God. मायावादी सन्यासी sometimes fall down. क्या होता है? मायावादी जो तपस्या वगैरह करते हैं, अभी क्योंकि उनकी भगवान में रुचि आई नहीं है, इसलिए क्या होता है? उनका कई बार पतन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन में टिक नहीं पाते और वो फिर से मटीरियल एक्टिविटीज में लग जाते हैं। और या फिर अगर मटीरियल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, बिल्कुल जो कि विकर्मा है, गलत एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो मटीरियल एक्टिविटीज में कोई फिलैंथ्रोपी की एक्टिविटीज, अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है फिलैंथ्रोपिक और अल्ट्रुइस्टिक का? कोई बता सकता है? फिलैंथ्रोपिक और अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटीज यहाँ पे लिखा है ना, ये Prabhuji, पूरी charitable ये or पूरी for the welfare of others. करेक्ट। ये पूरी लाइन पढ़ सकते हो माता जी आप? ये शेडेड है। Yes, Prabhuji. The Mayavadi sannyasis sometimes fall down from the path of self-realization and again enter into material activities of a philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements. हाँ, तो कई बारी वो स्कूल खोलेंगे, कोई क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम खोलेंगे, कोई धर्मशाला खोलेंगे, कोई पेड़ पौधे लगाएंगे, समाज के कार्यों में लगेंगे और अपने इनकन्वीनियंस में भी दूसरों का वो करना चाहेंगे।
लेकिन ये भी एक्चुअली मटेरियल एक्टिविटीज है, क्योंकि ये अकर्मा नहीं है, ये कर्मा है, राइट। अगर विकर्मा, कई लोग तो बिल्कुल ही गलत हैं, वो तो विकर्मा कर देते हैं, लेकिन कई लोग कर्मा करते हैं, वो भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता, आपको अकर्मा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने पुराने वाले हमारे सेशंस अटेंड किए हुए हैं, लेकिन जो जो यहाँ नए लोग ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने नहीं करे हैं, जो नहीं देखे वीडियो, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि इससे सबकी रिवीजन होती है। तो अगर आप कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है, आप अपना अनम्यूट करके माइक किसी चीज का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आप कई बार देखोगे कि कई बार क्या होता है, कोई सन्यासी होते हैं या कोई होते हैं जो रिनाउंस कर चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर वो आ जाते हैं समाज के कार्यों में, कोई पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, कोई दूसरी चीजों में आ जाते हैं, और वो एक्चुअली लोगों का भला ही करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल पाथ में एक नहीं, स्टडी जो जो स्पिरिचुअल गोल था वो वहां से हट गया। अब गोल अब क्या है, समाज के कार्यों में लग गए हूँ। तो ये जो चीज है ये अच्छी तो है, लेकिन ये प्योरली स्पिरिचुअल नहीं रही, इसलिए मटेरियलिस्टिक हो। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज अगर व्यक्ति करे तो वो फार बेटर है, चाहे कोई सन्यासी ना भी हो, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, वो भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं एक्टिविटीज करे तो भी बेटर है। देखो क्या लिख रहे हैं लास्ट में, therefore the conclusion is that one who is engaged in krishna conscious activities are better situated than sannyasis engaged in simple speculation about what is brahman and what is not brahman, although they too come to krishna consciousness after many births। तो ये चीज जो यहाँ पे दी गई है, ये 12th चैप्टर में फिर आती है, अगर आप लोगों में से किसी को याद है। अभी रिसेंटली निर्भय प्रभु वाज कोटिंग द श्लोका हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस में, तो 12th चैप्टर का ये श्लोक है। कोई बता सकता है 12th चैप्टर में क्या क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने? उसने फिर से यही पूछा था कि कोई इम्पर्सनल तरीके से आपके पास बढ़ता है, ये सोच के कि आप एक शक्ति हो, और कोई अपने पर्सनल फॉर्म को आपके उसको वर्शिप करता है, उसमें बेटर क्या है? तो कृष्ण ने कहा जिसका माइंड हमेशा मेरे में फिक्स होता है और वो मेरे उसमें चिंतन करता रहता है और मुझे वर्शिप करता है विद फुल फेथ, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। और जो लोग इम्पर्सनल रियलाइजेशन के तरफ बढ़ते हैं, those whose minds are attached to unmanifested impersonal feature of the supreme, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करना। और ऐसे व्यक्ति जो है उनको कई जन्म लगते हैं, बहुत मुश्किल से फिर पहुंचते हैं। तो इसलिए सीधा भगवान जो भगवत गीता में कह रहे हैं उसको समझ के भक्ति योगा को जो प्रैक्टिस करते हैं वो एकदम एलिवेटर लेके सीधा आप पहुंच जाते हैं विद इन सेकेंड्स। और बाकी लोग वो स्टेयर्स लेते हैं, उनको 100 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसका मतलब काफी जन्म लग सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, आई थिंक रक्षिता माता जी कुछ शेयर करना चाहती है। यस माता प्रभु जी। जी, अमोघ लीला प्रभु ने 5th चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस थी ना उसमें बताया था इससे, और इससे इसी चैप्टर से रिलेटेड ये निष्काम में कि वो उन्होंने बताया था कि कृष्णा कहते हैं कि अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। सो इसलिए सांख्य को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो भी करना है तो मेरे नाम में अगर रहेगा, करते करेगा तो मैं तेरे काम में, और अगर तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, तो किसी को समझ तो नहीं आ गया इस श्लोका में जो भी हमने डिस्कस किया? गलती से किसी को कोई समझ में आ गया हो? ओके, रक्षिता माता जी फिर से आप शेयर करना चाहते हैं कुछ?
प्रभु जी मैं अभी लोअर कर। ओके, ऑल राइट। तो समझ में आया नहीं आया? कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स, कोई पॉइंट्स, कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? प्रभु जी समझ आया। समझ में आ गया? तो कितनी तरीके के सन्यासी बताए गए हैं? 3 तरीके के, 4 तरीके के? प्रभु जी 2 तरीके के। 2 हो गए 2 तरीके। वेरी गुड। कौन कौन से हैं वो दोनों? मायावादी और वैष्णव। ओके, मायावादी और वैष्णव। वैष्णवी और मायावादी। कृष्णा कौन सा रिकमेंड कर रहे हैं? वैष्णव। वैष्णवी। अच्छा, मायावादी को नहीं रिकमेंड कर रहे? प्रभु जी क्यों नहीं कर रहे माया? क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे? क्योंकि मायावादी का एक टाइम के बाद अगर वो स्पिरिचुअली ऊपर जा रहे हैं लेकिन कभी भी उनका फॉल हो सकता है, वो डाइवर्ट हो सकते हैं। वेरी गुड। तो कोई एग्जांपल दे सकता है कौन से ऐसे हैं जिनका फॉल हो जाता है? ऐसे कोई योगी या कोई मायावादी या कोई ऐसे हैं जिनका फॉल डाउन आपने सुना हो? जी सुना तो है, अब ये नहीं पता कि उन्हें वो मायावादी कैटेगरी में भी आते हैं या उससे भी नीचे। हाँ बताओ सुना कौन, तो एग्जांपल। प्रभु जी शास्त्र का तो शास्त्र में वैसे जैसे प्रभु जी चैरिटेबल ट्रस्ट वाली बात की थी कि जो ये एक्टिविटीज करते हैं, जो कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, जिसमें आते हैं और उसके बाद उनका फॉल डाउन होता है। ऐसे बहुत साल पहले तो आशाराम बापू आए थे ना, उनका ही सुना था। नहीं, वो तो सब उस लेवल पे नहीं है ना। हम तो ऐसे ओके ओके। अच्छा हो सकता है हो, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग आप देखो जो एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, वो शास्त्रों के हिसाब से, आई डोंट नो हु इज। प्रभु जी शास्त्रों के हिसाब से तो नहीं, मुझे भी एक्चुअली ये एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली अभी के हिसाब से मैंने शेयर किया शास्त्रों के। मतलब जो शास्त्रों में एग्जांपल्स दिए हुए हैं पहले के, जिन्होंने जो डेविएट हो गए, जैसे एग्जांपल आता है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। आप कविता बोल रही? आई डोंट नो राशिका। ओके यस। आई डोंट नो वेदर ये सही यहाँ पे होगा या नहीं, बट जैसे जब वामन अवतार में जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने जब अपने शिष्य को बोला था कि विष्णु है तो क्या हुआ, आप इसको मतलब डिफीट, उसको वो 3 स्टेप्स नहीं देने हैं, तो उन्होंने भी सारे शास्त्र वगैरह सब पढ़े हुए थे, सब पावर्स ही सब थी, बट उन्होंने फिर वो मायावादी में यूज करा था। हाँ वो तो एक्चुअली थोड़े मटेरियलिस्ट हो गए। एक्चुअली मायावादी भी से भी थोड़े से वो डिफरेंट हो गए, बट दैट इज अ गुड ऑफ अतुल समवन। एक एग्जाम्पल है, वो मायावादी तो नहीं है लेकिन वो भरत महाराज का वो जो भरत महाराज भी वो actually, डियर में हाँ वो डियर गुड, में वो हो गया था ना। वो भी अच्छा एग्जांपल है, वो अच्छा एग्जांपल है। लेकिन प्रभु जी वो विश्वामित्र जी का आप एग्जाम्पल आ पे थे सकता है actually, क्या? तो सॉरी एग्जैक्टली वो मायावादी का एग्जांपल नहीं आएगा डियर का। हाँ जी अंकिता माता जी कौन सा कह रहे हैं आप? प्रभु जी, आई वाज थिंकिंग विश्वामित्र ऋषि का एग्जाम्पल आ सकता है हाँ क्या विश्व इसमें? का एग्जांपल आएगा। यस, दैट इज वन एग्जांपल। गुड। और दूसरा एग्जांपल एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे फिर से? हाँ यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग सन्यासियों के बारे में लिखा है, तो 2 सन्यासी की बात कर रहे हैं, एक वैष्णव और एक मायावादी। तो कृष्ण वैष्णव सन्यासी का रेकमेंड कर रहे हैं कि जो वैष्णव है वो एक्चुअली बेटर है, और 12th चैप्टर में कृष्ण क्लियर कट ये फिर से बोलेंगे, और कह रहे हैं कि ये जो मायावादी पाथ है ये इसमें एडवांसमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि अनमैनिफेस्टेड फॉर्म उसमें तरीके से अप्रोच करता है, उसके लिए बड़ी कठिन हो जाती है स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करना। और शास्त्र में कई एग्जांपल दिए जाते हैं जो जिनका फॉल डाउन हो जाता है एक्चुअली। तो एक एग्जांपल आता है सौबारी मुनि, हमने पहले भी पढ़ा है।
वो क्या है, वो तपस्या कर रहे थे, वो पानी के नीचे ले गए थे तपस्या करते करते, और इतनी पावरफुल उनकी तपस्या थी। लेकिन उन्होंने देखा 2 मछलियां आपस में मेट कर रही हैं, उनका मन मचल गया। उन्होंने कहा कि मुझे भी जाके शादी करनी है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जब हम भगवान के साथ अटैच नहीं होते। और उसका कॉन्ट्ररी एक एग्जाम्पल आता है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर एक्चुअली मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ था, और मुस्लिम फैमिली में जन्म होने के बाद भी वो जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र से इनका बड़ा अट्रैक्शन हो गया था, अटैचमेंट हो गया था। तो इतना अट्रैक्शन और अटैचमेंट हो गया उनका कि वो पूरे दिन बस ये मंत्र जो है ना उस पर मेडिटेट करते हैं। अब कई लोग सोचते हैं अरे यार ये पूरे दिन बैठ के मेडिटेट करना हमको बिल्कुल नहीं इसको रेकमेंड करेंगे। हम रेकमेंड करेंगे कि कुछ काम करो, ये क्या बैठ के कर रहे हो। एक्चुअली वो लोग ये समझ नहीं पाते कि पूरे दिन बैठ के माइंड को कंट्रोल करना इज नॉट इजी। अगर कोई ऐसा कर ले तो बहुत पावरफुल व्यक्ति है। ही इज मोर पावरफुल देन द कॉन्करर ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व का विजेता भी जो होंगे उससे भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर। ज्यादातर लोग कर नहीं सकते। ज्यादातर लोग पूरे दिन क्या 5 मिनट अगर हम कहें आपको कि आप सिर्फ ये मंत्र को फोकस करो, मेडिटेट करो और उसको सुनो, अटेंशन आपकी यही होनी चाहिए, तो ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे 5 मिनट में। हरिदास ठाकुर कई कई घंटे ये कर पाते बिकॉज ही हैड दैट अट्रैक्शन और फोकस। और हरिदास ठाकुर एक्चुअली पता है कौन है, पहले जन्म में क्या थे वो, कौन बताएगा? ब्रह्मा जी। हाँ, वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं एक्चुअली। जो ब्रह्मा जी हैं वो हरिदास ठाकुर बन के आए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान की जब लीला थी तो एक बारी ब्रह्म विमोहन लीला हो गई थी। ब्रह्मा जी को भी बिविल्डर कर दिया था कृष्णा ने। ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने कहा ये तो साधारण बालक, और उन्होंने कहा अच्छा इसको मैं थोड़ा मजा चखाता हूँ। उन्होंने ले लिए उनके गाय और ग्वाल बाल। बड़ी लंबी कथा है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, तो उसको उनको लगा अब ये छोटा जो बालक है इसको पता लगेगा कि इसके बस का नहीं है ये सब मैनेज करवाना। लेकिन उल्टा हो गया, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। ब्रह्मा जी ने सब कुछ ले लिया था, लेकिन फिर देखा वो सब कुछ सब वहीं पे, उनको समझ नहीं आया कौन से रियल है कौन से आर्टिफिशियल है। वहां पे देखा, वहां पे भी थे जहां पे उन्होंने सबको चुरा के रखा था, और यहाँ पे भी है। समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। फिर कृष्ण ने दिखाया हर एक लिविंग एंटिटी में, उन्होंने दिखाया जितने भी वहां पे ग्वाल बाले थे, काउस काफ वो सब थी, वो एक्चुअली कृष्णा ही ने ही सबका रूप ले रखा था। तो इसको देख के बहुत उनको पछतावा ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसी मेरे को ऐसा समय मिले जब मैं आपके पवित्र नामों का बस जाप करता। और क्योंकि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं अपनी प्राइड में आ गया था कि मैं बहुत ग्रेट हूं, तो इसलिए मैं एक लो जाति में जन्म लेना चाहता हूँ, और उसमें टोटली मैं आपके नाम के प्रति सरेंडर होना चाहता हूँ। तो उनकी इच्छा थी, फिर उनकी इच्छा पूरी हुई, हरिदास ठाकुर के फॉर्म में जब आए। अब हरिदास ठाकुर जो थे वो पूरे दिन भगवान का नाम लेते थे। पता है एक दिन में अगर आप 108 बारी भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इसको 108 बार करो तो उसको कहते हैं एक माला कर लिया आपने, एक माला। तो जनरली डिवोटीज को ये रेकमेंड किया जाता है कि आप रोज कम से कम एक माला तो करो ही करो। जो थोड़े सीरियस होते हैं उनको कहते हैं आप 16 माला मिनिमम करो एक दिन में, 16 माला, 16 मल्टीप्लाई बाय 108 टाइम्स।
लेकिन हरिदास ठाकुर कितनी माला करते थे एक दिन में, किसी को पता है? कौन बताएगा? 192 करते थे। 192 प्रभु जी। हाँ, 192 राउंड्स, एक राउंड नहीं, 16 नहीं, 192 राउंड। तो 192 राउंड्स करते थे और साथ में सेवा भी करते थे, प्रीचिंग भी करते थे, लोगों को भगवान के बारे में बताते भी थे। और एक बार क्या हुआ, वहां क्योंकि उनका बर्थ जो था वो मुस्लिम फैमिली में हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने कि मेरे को लो फैमिली में बर्थ भी मिलेगा ताकि मेरी प्राइड क्रश हो। तो उनको मिला लो फैमिली में बर्थ, मुस्लिम फैमिली में। मुस्लिम फैमिली लो क्यों है? क्योंकि बचपन से ही उनको पाप करना ही पड़ता है। मुस्लिम क्रिश्चियन फैमिलीज में जो जन्म लेते हैं उनको मांस खाना पड़ता है, उनको गलत गलत बलि देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी कहते हैं वो लोग। तो ऐसे उनको पैदा होने से ही गाय का मांस और ऐसे गलत गलत चीजें शुरू, तो इसलिए वो पाप योनि हो गई। लेकिन कोई उसमें भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अपनी पुरानी हैबिट छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ता है तो वो हाईएस्ट है, तो वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकता है। इसलिए हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल से हमने देखा कि उस जमाने में कोई कास्ट सिस्टम को कभी भी रिकमेंड नहीं किया लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने देखा कि अरे ये व्यक्ति जो है ये भगवान के नाम ले रहे हैं, तो इसको हाईएस्ट लेवल की डेजिग्नेशन दी। क्या? नामाचार्य, नाम के आचार्य हैं, तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहा जाता है। और हरिदास ठाकुर का नाम में इतना एब्जॉर्प्शन था कि और कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारा उल्टा है, हमारा नाम में अगर हम चैंटिंग करते हैं तो पहले हमारा दिमाग तो कहीं और ही होता है, किसी और चीज में। अगर हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे को घर में है तो हमें ऑफिस की टेंशन है कि नहीं, कि ऑफिस में क्या हो रहा है, काम पे क्या हो रहा है, या फिर बच्चों की टेंशन, या फिर स्कूल की, या फिर क्या कुकिंग करना है, या फिर क्या खाना है, क्या कुक हुआ है, क्या फ्रिज में है, हर जगह दिमाग जाएगा सिवाय मंत्र के। लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसा नहीं था, हरिदास ठाकुर का एक एक मंत्र एब्जॉर्ब था, वो पूरे एक एक चीज हेयर कर रहे थे अटेंटिवली। तो ये क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी वैसे वैसे क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, दोनों चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। तो हरिदास ठाकुर की इतनी एब्जॉर्प्शन थी कि एक बारी वहां पे जो लोकल क्या कहते हैं नवाब के रिप्रेजेंटेटिव थे, उस वक्त मुगल राज चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम होके भी ऐसे हिंदुओं का नाम ले रहा है और ये बड़ा फेमस हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं इसको, सोच रहे हैं ये बड़ा संत महात्मा है, तो इसका नाम खराब करना है हमने। तो उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाया, उनको पैसे दिए कि भाई आप जाओ और शाम के टाइम में जाना, रात के टाइम में इनके साथ, और इनके साथ जाके इनका ध्यान भंग करो, और जैसे इनका ध्यान भंग होगा फटाफट न्यूज हम फैला देंगे कि ये देखो ये गलत गलत चीजें करता है रात को और इधर संत महात्मा बन रहा है। तो गई उनके पास, उन्होंने बोला कि देखो आप तो कितने कितने हैंडसम हो और मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और हम यंग भी हैं, और देखो अभी यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, आराम से हम एंजॉय कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर तो बड़े सिंपल से एक उसमें रहते थे, जंगल में अलग से एक केव में, या हल्का सा भजन कुटीर सी थी वहां पे। तो जब वो आई उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा देखो मैं भगवान के नामों का जाप करता हूँ, मेरे आज का मेरे ना कोटा जो है मेरा खत्म हुआ नहीं है, तो मुझे आप थोड़ा टाइम दो, मैं भगवान का नामों का जाप कर लूं पूरा, फिर उसके बाद जो जैसे भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ करूंगा। तो वो वहां बैठी और उनके सामने ये चैंटिंग करते रहे, तुलसी महारानी थी वहां पे, तुलसी के सामने वो चैंटिंग कर रहे थे हरिदास ठाकुर, वो करते रहे।
वो करते करते पूरी रात की सुबह हो गई, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो 192 राउंड्स खत्म ही नहीं होते उनके तो कभी। उन्होंने कहा ओहो सॉरी सॉरी, मैं आज कोशिश करूंगा अपने राउंड्स पहले खत्म कर लूं, फिर आप आना, फिर मैं आपको जैसे भी सेवा करनी हो आपकी करूंगा, अभी मेरी मुश्किल हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल मैं फिर आऊंगी या आज मैं फिर आऊंगी, क्योंकि अब सुबह हो गई ना। रात को फिर आई, अभी भी हरिदास ठाकुर ने कहा देखो अभी मेरा थोड़ा माला बची है, मैं लेट मी डू चैंट, और अटेंटिवली चैंटिंग कर रहे थे, और इतनी प्योर चैंटिंग थी कि जो ये आई थी प्रोस्टिट्यूट, इनका हृदय जो है वो परिवर्तित होने लग रहा था उनकी चैंटिंग सुन के। तो सेकंड भी चला गया सेकंड डे, वो थर्ड डे आया, उन्होंने कहा ओ सॉरी आज भी मैं नहीं कर पाया आपकी सेवा, आप आज रात को फिर आना। तो तीसरे दिन वो फिर आई, तीसरे दिन भी उन्होंने कहा अभी मेरे बस थोड़ी चैंटिंग बची है। फिर करते 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 वो क्या हुआ, 3 नाइट्स उसने पूरी चैंटिंग हरिदास ठाकुर की सुनी, और ये चैंटिंग का ये कमाल था कि उसका हृदय पूरा परिवर्तित हो गया। उसने सारा कुछ सच सच बताया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बहुत गलत काम के लिए आई थी, और आपके संत महात्मा मैं आपकी शरण लेती हूँ, बिल्कुल भी क्या कहते हैं अच्छी इंटेंशन नहीं थी मेरी, और ऐसे ऐसे मुझे पैसे दिए गए थे काम करने के लिए, और इसलिए मैं आई, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। हरिदास ठाकुर ने बोला देखो मैं तो बहुत पहले यहाँ से जाने वाला था, लेकिन मुझे पता लग गया था कि आप आने वाली, और मैं इसीलिए यहाँ रुका ताकि आपको ये होली नेम, ये भगवान का नाम दे सकूं। और अभी आपके हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया है, अब आप ये भगवान का नाम ले लो और तुलसी महारानी की सेवा करो, यहाँ पे ही रहो आप। अगर आप ये दोनों करोगे और कोई पाप नहीं करोगे अब, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये शक्ति है एक प्योर डिवोटी की, कि जिसके कृपा से दूसरे लोग भी जो है वो पवित्र हो जाते हैं। तो ये फर्क है जो 2 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस है वैष्णव सन्यासी भगवान के तरफ अट्रैक्ट होने का, और एक है मायावादी की रिजेक्ट करने का, कि जो चीजें हैं उनको सेंस ऑब्जेक्ट को ना करना। तो ये दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है सबको? ओके ग्रेट, ऑल राइट। तो किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन? हाँ हरे कृष्णा माता जी, आप थोड़ा माइक के पास आ जाओ, आवाज नहीं आ रही आपके क्लियर इतनी लाउड। प्रभु जी, जैसे आपने सवारी मुनि का एग्जाम्पल दिया, वैसे हम ब्रह्मा जी को ले सकते हैं क्या इसमें कि नहीं? कैसे? एग्जाम्पल पूरा बताओ, क्या हुआ ब्रह्मा जी के लिए? जैसे उन्होंने भी तो बहुत तपस्या की और वो किया, जब वो उनका वो देखो उत्पत्ति हुई जब उनकी, जब यहाँ मायावादी सन्यासी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो देवता, बड़े हाई प्लेटफॉर्म में, वैष्णव भी हैं वो, उनसे तो गलती होगी ना, इसलिए उन्होंने एक अपना भाव प्रेजेंट किया कि मुझे भगवान के नाम लेने के लिए हरिदास ठाकुर के रूप में आना है। ब्रह्मा जी जो है वो एक्चुअली वैष्णव है, वो मायावादी थोड़ी है। जैसे वैष्णव है वो, लेकिन क्या है कि कई बारी डिवोटीज से भी गलती हो जाती है कि नहीं? वो अलग बात है कि हम प्योर डिवोटीज, महाभागवत डिवोटीज की बात कर रहे हैं, जैसे हरिदास ठाकुर या फिर अद्वैत आचार्य या फिर नारद मुनि, ये सब प्योर हैं। लेकिन कई बारी भगवान की योग माया के प्रभाव में आके भगवान को कोई लेसन सिखाना होता है ना हमें, तो वो दिखाते हैं कि देखो जो डिवोटीज हैं उनसे भी कई बारी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि वो ब्रह्मा जी और नारद मुनि ये सब तो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से भगवान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनको मायावादी सन्यासी से कंफ्यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है माता जी? डज इट? हाँ, प्रभु जी। मायावादी मीन्स वो कृष्णा की वर्शिप और उसमें नहीं लगते। ब्रह्मा जी तो खुद पूरी ब्रह्म संहिता बोली उन्होंने, आप देखो,
है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी जो है वो आते ही सबसे पहले उनको तो विष्णु के दर्शन हुए, उन्होंने तो बोला। मायावादी जो है वो कहते हैं कि बस लाइट ही, वो नहीं, वो विष्णु को उनको पता नहीं होता। ब्रह्मा जी ने तो खुद सुना, हृदय में आया उनके, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन् यत् सूर्य। भगवान जब ज्ञान देते हैं शुरू में तो ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ आया था, पता लग जाता है। अलग अलग तरीके से भगवान नॉलेज, वैदिक नॉलेज, तो ये बेस है, ठीक है ना? यस प्रभु जी। ऑल राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? ऑल राइट, तो आई थिंक आज के लिए यही था, स्टॉप करते हैं अभी। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Can I Krishna. ask one question, Prabhuji? हाँ, It's maybe simple, but it came in my mind. जैसे बताओ। प्रभुजी, जैसे आपने बताया कि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम में बॉर्न होते हैं तो पाप योनि में, क्योंकि उनको शुरू से ही वो मीट ईटिंग और ये सब करते हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत ही पूजा भी कर रहा है और ये सभी मीट ईटिंग और ऐसे पाप भी कर रहा है, तो फिर उनका क्या प्रभुजी? और मान लीजिए वो नहीं चेंज होते हैं, वो सब नहीं छोड़ते हैं, तो क्या वो भी लिबरेटेड होते हैं, और या तो वो सुधरते नहीं है, या मतलब कैसे प्रभु जी? उनको किस कैटेगरी में हम डालेंगे प्रभु जी? उनको कैटेगरी में डाल, विकर्मी इसकी, कर्मा अकर्मा और विकर्मा होता है ना। तो कर्मा मीन जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं उसका अच्छा फल मिलेगा आपको। विकर्मा मीन जो आपने गलत कार्य किए हैं उसका गलत फल मिलेगा आपको। और अगर कोई पाप करता रहता है, मीट ईटिंग या कोई दूसरी चीजें, तो वो फिर उसके रिएक्शंस आएंगे, है कि चाहे नहीं? वो कितनी पूजा भी कर ले, पूजा पाठ और वो सब प्रभु जी, भगवान को भी मान रहा है तो भी। हाँ, वो तो कितने सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं इतने सारे दुनिया में, तो उससे क्या होता है? सिर्फ भगवान को मानना और पूजा पाठ करना तो कर्मा और विकर्मा की कैटेगरी में आएगा ना। जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसका उनको अच्छा फल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बुरा ही काम करते हैं सब लोग। जो बुरा काम किया उसका बुरा फल मिलेगा, जो अच्छा काम किया उसका अच्छा फल मिलेगा। हाँ, अगर भक्ति की, पूजा और भक्ति में बहुत फर्क है। पूजा होता है जब किसी कर्म की इच्छा से करते, भक्ति होती है जब भगवान से प्रेममयी सेवा करते हैं। तो जब भक्ति कोई करता है और ये सोचता है कि मैं पुराने काम खत्म, बस बहुत मैंने पाप कर लिया, बंद, वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया ना कि जब जगाई मधाई, वो दो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, जब वो नित्यानंद प्रभु लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए, तो लॉर्ड चैतन्य ने उनको बोला कि अब आप सिन नो मोर, अब से पाप करना बंद। एक बारी जीसस क्राइस्ट के पास भी एक प्रोस्टिट्यूट आई थी और काफी बाकी लोग कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन जीसस ने देखा वो सीरियस सिंसियर थी, भगवान की शरण में थी, तो जीसस क्राइस्ट ने भी उनको शरण दी और फिर उन्होंने कहा अब से पाप बंद। तो ये होता है पॉइंट कि अगर हमें अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र भी करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट तो होगा, लेकिन अगर आप साथ साथ जा जाके पाप करते हैं तो फिर आपको पाप का भी जो है वो हिसाब किताब करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने पाप स्टॉप कर दिए कि अब भाई मैं अब से नहीं करूंगी या करूंगा, और भगवान की शरण में आप आ जाते हो, फिर पुराने पाप जो है वो भगवान हटा देते हैं। मगर अगर हम ये सोचेंगे कि हम पाप भी करते रहेंगे और साथ साथ हम पूजा पाठ कर लेंगे उससे सब खत्म हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। पूजा पाठ का भी बेनिफिट मिलेगा और पाप की भी सजा मिलेगी। समझ में आ गया? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का क्वेश्चन? ऑल राइट, तो विल स्टॉप हियर। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।